Okay. So good morning, students. Now, beta, we shall again continue our chapter, that is lifelines of national economy. Okay, that is already going on in our class. So please check out page number 87 in your textbooks, and we shall continue the topic that is going on. That is your major ports. This topic is going on in our class now, major ports. Now, in the previous video, we had discussed about the topics. That is your first, we discussed about the Kandla port. First, we discussed about the Kandla port. That is completed. Okay. Secondly, we discussed about the Mumbai port. Mumbai port. That is also completed. Next, thirdly. Now, beta, third, we shall discuss about another important port of India. That is your Marmagao port. Also, we had discussed about Jawaharlal Nehru port. This is also in Mumbai. Both are in Mumbai. Okay. Now, next port is your the Marmagao port. Marmagao port. Okay, ji. You can see in your map also on page number 89. Marmagao port is in your Goa. In the state of Goa. Okay. Now we shall discuss about this port. देखो बेटा, मारमागांव पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, इसके बारे में खासियत क्या है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया. अच्छा, नाउ आई वांट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पोर्ट. बेटा, दिस इज द पोर्ट दैट इज कनेक्टेड विद द पाइपलाइंस. Okay, which pipelines that used to transport the mineral, and which mineral? Iron ore in a molten form. ठीक है, मैंने आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा जब पाइपलाइंस वी वर डिस्कसिंग ना, आई हैड टोल्ड यू दैट देयर इज आल्सो वन पाइपलाइन इन इंडिया दैट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड गोज अप टू गोवा. दैट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द मोल्टन मिनरल. एंड this Marmagao port of Goa is connected with these pipelines. And these pipelines used to transport the iron ore, the molten iron ore to the Marmagao port, and from here it is exported to the outside countries. ठीक है ना. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है मारमागांव पोर्ट की. ये पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है इंडिया का जो कि पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड है, और ये पाइपलाइन के जरिए क्या होता है, हम लोग मेल्ट करके आयरन ऑर को एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज को. दैट मीन्स वी आर यूजिंग द मोल्टन फॉर्म ऑफ आयरन ऑर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस, and then it is again solidified into iron ore form, and then again exported to the western countries. तो मतलब कि ये इसकी खासियत है कि it is connected through pipelines with the state of Karnataka. Okay, next, this port accounts for about 50% of the, underline please, this port accounts for the 50% of India's iron ore export. एक क्वेश्चन लिख लो for 1 marks. Write down the important question for 1 marks. Name the seaport of India. Name the seaport of India that is used for exporting iron ore to the foreign countries. Answer is your Marmagao port in Goa. Okay, New Mangalore port located in Karnataka caters to the export of iron ore concentrates from Kudermukh mines. Kochi is the extreme southwestern port located at the entrance of the lagoon with a natural harbor. इसके अलावा there are some other ports also that are used for iron ore, but this is the premier port used for iron ore export. Also, some other ports that are used for iron ore export are, you can underline their names. That is your New Mangalore port. That is your New Mangalore port in Karnataka. Also
कोची पोर्ट, ठीक है जी, द पोर्ट ऑफ कोची, दैट मीन्स इन केरला. Kochi port that is in the extreme southwestern port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. ठीक है ना. और ये कोची पोर्ट का एक लगून पर बसा हुआ है. लगून कैसे? इन दिस वे. दिस इज द मैप ऑफ सदर्न इंडिया. ठीक है. हेयर यहाँ पर है केरला, और केरला इन दिस वे. यहाँ पर लगून बनता है. लगून आपको पता है ना, एक नेचुरल, एक तरह की नेचुरल लेक होती है जिसके which is connected three sides from the land, and from in one side it is the entrance of water. ठीक है. and it is a salty lake, so that's why here is also a lagoon. तो कोची port is also located on a lagoon, and which is a natural port in itself. तो ये port, this port is also, Cochin port is also an important seaport of India. You can see all of these ports in your maps also. आप सारों की लोकेशन को मैप पर देख सकते हो पेज नंबर 89 पर. ठीक है. न्यू मैंगलोर पोर्ट, नेक्स्ट योर कोची पोर्ट. नेक्स्ट, moving along the eastern coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in the Tamil Nadu. This port is a natural harbor and rich hinterland. Thus, it has a flourishing trade, handling a large variety of the cargoes even to the neighboring countries of Sri Lanka. ठीक है. आप देख सकते हो एक और पोर्ट आ रहा है बेटा, that is Tuticorin port. ठीक है जी. Tuticorin port number 5. That is your Tuticorin port, and this port is again, this port is in the state of Tamil Nadu. Okay, this port is in the state of Tamil Nadu, and this port is mostly used. This port is mostly used to export the equipment, to export the goods to the neighboring southern states or neighboring southern countries of India, just like Sri Lanka, just like Maldives, especially, and also some distant southern countries like Mauritius also. So this port is mostly used to export the goods to the neighboring southern ports, to the neighboring southern countries of India, like Sri Lanka, Maldives, and also the far away countries like मॉरिशस. ठीक है जी. ये इस पोर्ट की खासियत है, द ट्यूटिकोरिन पोर्ट. उसके अलावा नेक्स्ट, द सदर्न पोर्ट विच इज़ द लार्जेस्ट सदर्न पोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, दैट इज़ योर चेन्नई पोर्ट नंबर 6. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, चेन्नई पोर्ट. ठीक है. इसकी खासियत क्या बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, the oldest port of the country. इसको आर्टिफिशियल लिख लो. oldest artificial port of the country. ठीक है. ये बिल्कुल क्या है, समुंदर के किनारे है ना, तो दैट्स वाई इसको थोड़ा हमने खुद पोर्ट के रूप में डेवलप किया. पहले ये पोर्ट के रूप में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, दैट्स वाई आर्टिफिशियल पोर्ट. बाकी सारे क्या है, बाकी स्टेट तो जितने भी है ना ऑलरेडी समुंदर के बिल्कुल किनारे पर ही हैं. ये थोड़ा सा ना चेन्नई पोर्ट थोड़ा सा अंदर को जाके होता है हल्का सा, तो दैट्स वाई थोड़ा सा हमने इसको खुद डेवलप करा प्रॉपरली. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट डेवलप्ड बाय इंडिया. Just like we have also the ports like Visakhapatnam that are also artificial ports, but that is less older as compared to Chennai. So Chennai is the oldest artificial port of the country. ठीक है. Next, number 2, the largest port in South India. ठीक है. ये आपको पता ही है, साउथ इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है. ठीक है जी. और उसके अलावा इट इज़ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो. ठीक है. ये भी इसकी खासियत है. द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ
कार्गो हैंडलिंग एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ठीक है, आफ्टर मुंबई क्लियर. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कार्गो हैंडलिंग एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आफ्टर द मुंबई सी पोर्ट. ठीक है, दैट इज योर चेन्नई पोर्ट. नेक्स्ट इज योर बेटा एक और पोर्ट आ रहा है विशाखापट्टनम सी पोर्ट. ये सारे पोर्ट्स के बारे में थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस पोर्ट्स. नंबर 6 आई थिंक सो, विशाखापट्टनम. अब विशाखापट्टनम के बारे में देखो बेटा, यू कैन सी ये इंडिया के लोकेटेड कहाँ पर है, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये और आपको पता ही पहले, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट्स. पैरादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन. ठीक है, अब मैं ना आपको इसके बारे में कुछ खास बताना चाहूँगा बेटा. विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट, इसके बारे में ये चीज़ लिख लो, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया. डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया. अब सवाल उठता है कि ये क्या चीज़ है, लैंडलॉक्ड पोर्ट, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया. अब इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आमतौर पे जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे समुद्र के किनारे होते हैं. ठीक है, ये जस्ट आई एम रबिंग इट. ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर्ली. आमतौर पे जितने भी सी पोर्ट्स होते हैं सब समुद्र के किनारे ही होते हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पोर्ट्स भी होते हैं जो ना बिल्कुल प्रॉपरली समुद्र के किनारे नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा अंदर को जाकर होते हैं. तो ऐसे पोर्ट्स को ना हमें खुद डेवलप करना पड़ता है पोर्ट्स के रूप में, तभी हम इनको आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी कहते हैं. जैसे अभी हमने चेन्नई के केस में देखा, चेन्नई इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट ऑफ इंडिया. वो थोड़ा सा अंदर को जाके बिल्कुल किनारे पर नहीं है, आप उसमें मैप पर भी देख सकते हो, बिल्कुल किनारे पर नहीं है. चेन्नई पोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा अंदर को जाके, इन दिस हल्का सा अंदर को जाके. तो इसीलिए हम लोग इनको खुद एक पोर्ट के रूप में डेवलप करते हैं, चाहे कैनाल बनाकर, चाहे किसी और तरीके से, ताकि ये एक पोर्ट के रूप में बन जाए. ठीक है, अब चेन्नई इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट. ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट. अब बारी आती है यहाँ पर विशाखापट्टनम. अब जरा आप विशाखापट्टनम को मैप पर भी देख सकते हो. विशाखापट्टनम जो ना, ये भी बिल्कुल समुंदर के किनारे पर नहीं है. इसको हमने खुद समुंदर के साथ जोड़ा है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ 10 किलोमीटर्स लॉन्ग कैनाल. हमने खुद एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाकर, हमने खुद एक आर्टिफिशियल 10 किलोमीटर्स लॉन्ग कैनाल बनाकर इसको समुंदर के साथ जोड़ा है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो, हालांकि दिस इट कैनॉट बी कॉल्ड एज एन द ओल्डेस्ट सी पोर्ट. ओल्डेस्ट तो चेन्नई ही है. चेन्नई इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, बट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, विशाखापट्टनम इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल सी पोर्ट ऑफ इंडिया. अब ये कैसे आर्टिफिशियल है, देखो, आमतौर पे जो सी पोर्ट जितने भी होते हैं ना, वो सारे समुद्र के किनारे ऑलरेडी बने होते हैं. चाहे मुंबई है, कांडला है, ये है, वो है, तुतीकोरिन है, मारमागांव है, ये सारे ऑलरेडी समुद्र के किनारे होते हैं. पर कभी कभार ऐसा होता है कि ना कुछ पोर्ट्स होते तो बहुत बड़े हैं, सिटी के रूप में बहुत बड़े होते हैं, पर वो बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं बसे होते, वो कुछ किलोमीटर्स अंदर होते हैं. तो ऐसे पोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैंडलॉक्ड पोर्ट्स. अब ऐसे लैंडलॉक्ड पोर्ट्स को, इस तरह के लैंडलॉक्ड पोर्ट्स को ना हमें खुद अगर सी पोर्ट बनाना है, खुद इनको बंदरगाह बनाना है, तो हमें खुद कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल तरीका यूज़ करना पड़ता है. और इसी तरह से, इसीलिए हमने विशाखापट्टनम को, ये जो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम
ठीक है। ये जो विशाखापट्टनम सी पोर्ट है इसको हमने खुद एक 10 किलोमीटर्स की एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाकर 10 किलोमीटर्स की आर्टिफिशियल कैनाल बनाकर खुद इस लैंडलॉक्ड पोर्ट को समुंदर के साथ जोड़ा है, ताकि इसका इस्तेमाल एक सी पोर्ट के रूप में किया जा सके और यहाँ से भी आराम से सामान को एक्सपोर्ट किया जा सके। तो दैट इज़ वाई विशाखापट्टनम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लैंडलॉक्ड सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो फॉर 1 मार्क्स। नेम द इंपॉर्टेंट लैंडलॉक्ड सी पोर्ट ऑफ इंडिया। नेम द इंपॉर्टेंट लैंडलॉक्ड सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज़ योर विशाखापट्टनम सी पोर्ट। हालांकि हम चेन्नई को हम लोग लैंडलॉक नहीं कर सकते, बिकॉज ये ना कुछ हिस्सा इसका समुंदर से भी टच करता है और कुछ हिस्सा इसका अंदर है। तो हमने खुद इसको मतलब कि हल्की फुल्की आर्टिफिशियल कैनाल बनाकर, बहुत छोटी सी कैनाल बनाकर इसको जोड़ा है। तो इसको प्रॉपरली हम लोग लैंडलॉक नहीं कर सकते। लैंडलॉक होता है बिल्कुल ही प्रॉपरली अंदर ही समुंदर के है, जो दूर दूर समुंदर टच ही नहीं करता। तो फिर उसको हमने पूरा का पूरा हिस्सा हमने कैनाल बनाकर उसको आर्टिफिशियली कनेक्ट किया। तो दैट्स वाई विशाखापट्टनम उस कैटेगरी में आता है जिसको पूरी तरह लैंडलॉक्ड कर सकते हैं। तो लैंडलॉक्ड सी पोर्ट को हमने 10 किलोमीटर्स की आर्टिफिशियल कैनाल बनाकर बे ऑफ बंगाल के साथ जोड़ा है। दैट इज विशाखापट्टनम इज एन इंपॉर्टेंट लैंडलॉक्ड सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विद एन आर्टिफिशियल कैनाल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, और ऑल्सो दिस विशाखापट्टनम सी पोर्ट इज ऑल्सो इज ऑल्सो यूज फॉर द आयरन और एक्सपोर्ट। और इसको भी हम लोग आयरन और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। देखो, जो हमारा जो न्यू मैंगलोर का सी पोर्ट है, हमारा मार्मागांव सी पोर्ट है, ये भी आयरन और के एक्सपोर्ट के होते हैं। पर ये अगर हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ को सामान भेजना हो, सपोज हमें ईस्टर्न कंट्रीज़ को आयरन और भेजना हो, सपोज हमें थाईलैंड को सामान भेजना हो, सपोज हमें ऑस्ट्रेलिया को सामान भेजना हो, हमें म्यांमार की तरफ को सामान भेजना हो, या हमें सिंगापुर सामान भेजना हो, तो वो सारे हमें इधर से नज़दीक पड़ते हैं फ्रॉम दिस साइड, नॉट फ्रॉम दिस साइड। अगर मुझे आयरन और सामान भेजना, देखो यहाँ पर सारी छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इस तरफ सारी छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और आपको पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से हमारा काफ़ी सारा आयरन और निकलता है। तो हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू से सामान निकालते हैं, आयरन और निकालते हैं, विशाखापट्टनम पहुँचाते हैं इस कैनाल के जरिए। इस कैनाल के जरिए हम लोग बे ऑफ बंगाल तक पहुँचते हैं और बे ऑफ बंगाल से सामान को अपने फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, चाहे सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वो सारे इस साइड को पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, वो सारे इस साइड को पड़ते हैं। तो हमें यहाँ से सामान एक्सपोर्ट करना, आयरन और एक्सपोर्ट करना ज़्यादा ईजी रहता है टू दीज कंट्रीज़। यहाँ से एक्सपोर्ट करना टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। सपोज हमें अफ्रीका भेजना हो सामान, हमें इंग्लैंड भेजना हो, अमेरिका भेजना हो, फिर हम यहाँ से भेजेंगे। लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज़ को भेजना हो तो हमें इस तरफ से भेजते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है बेटा आपका द कोलकाता सी पोर्ट। विशाखापट्टनम, अच्छा विशाखापट्टनम एक और पोर्ट आ रहा है, दैट इज पैराद्वीप। पैराद्वीप पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और। इसको भी हम लोग यहाँ पर पैराद्वीप है, ठीक है, दैट इज योर पैराद्वीप पोर्ट। दिस पोर्ट इज ऑल्सो अगेन यूज फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। अब देखो ना, आप ज़्यादातर देख रहे हो यहाँ पर, पता क्यों आयरन और एक्सपोर्ट के ज़्यादा है? क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पड़ता है, झारखंड की तरफ। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ पड़ता है, उड़ीसा की तरफ पड़ता है। तो हम लोग जब यहाँ से आयरन और निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली यहीं के पोर्ट से भेजेंगे। अब ये थोड़ा ना मैं यहाँ पे आयरन और एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आयरन और निकाल रहा हूँ, तो मैं उसको पहले यहाँ लेकर आऊँगा, फिर यहाँ से भेजूँगा। अगर तो मैंने किसी वेस्टर्न कंट्री को भेजना, फिर तो मुझे चलो लाना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन सपोज करो मैंने इधर को सामान भेजना, मैंने सिंगापुर को सामान भेजना, या मैंने मलेशिया को सामान भेजना, तो मैं पहले क्या करूँ, यहाँ से यहाँ लेकर सीधा यहाँ से भेजूँ। ऐसे थोड़ा ना करूँगा, यहाँ से सामान निकला तो पहले मैं यहाँ लेके जाऊँगा, फिर ऐसे पूरा घूम के ऐसे जाऊँगा, ऐसे तो करूँगा नहीं। तो दैट्स वाई हमारे आयरन और की जो एक्सपोर्ट की काफ़ी सारी यहाँ पे पोर्ट्स हमें मिलते हैं, बिकॉज छोटा नागपुर प्लेट्यू इस साइड पर है। तो अगर हमने ईस्टर्न कंट्री को सामान भेजना हो तो हम लोग पैराद्वीप, आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, चेन्नई, इन जगहों से सामान भेजते हैं। वैसे ज़्यादातर इन दोनों से भेजते हैं क्योंकि ये दोनों काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, पैराद्वीप पोर्ट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है, पैराद्वीप पोर्ट सीधे समुद्र के किनारे ही है, लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट समुद्र के किनारे नहीं है, इट इज़ अ लैंडलॉक्ड। विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ अ लैंडलॉक्ड सी पोर्ट, ठीक है। तो इसे हमें खुद 10 किलोमीटर्स की आर्टिफिशियल कैनाल बनाकर समुद्र से जोड़ना पड़ा, फिर हम लोग इसको उससे भेजते हैं सामान, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है आपके प्यारे बच्चों, दैट इज़ योर कोलकाता सी पोर्ट। अगेन हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, दैट इज़ योर कोलकाता सी पोर्ट। नाउ रनिंग दिस, ठीक है। चलो यहीं से देख लो, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर है कोलकाता। अब कोलकाता की भी वही बात है, ऐसी ही बात है जैसी विशाखापट्टनम की है। कोलकाता इज़ अगेन अ लैंडलॉक्ड पोर्ट। कोलकाता लेकिन प्रॉपरली लैंडलॉक्ड नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ़र्क क्या है कोलकाता और विशाखापट्टनम में। देखो,
कोलकाता के पता, हम लोग पता क्या बोलते हैं, कोलकाता इज एन इनलैंड, कोलकाता इज एन इनलैंड सी पोर्ट, ये नोट कर लो वर्ड इनलैंड। विशाखापट्टनम क्या था, विशाखापट्टनम वाज अ लैंडलॉक्ड पोर्ट, जो विशाखापट्टनम है ये, ठीक है, दिस विशाखापट्टनम इज अ लैंडलॉक्ड पोर्ट एंड कोलकाता, दिस इज कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता इज एन इनलैंड सी पोर्ट। अब इनलैंड सी पोर्ट और लैंडलॉक्ड सी पोर्ट में क्या फ़र्क है, देखो लैंडलॉक्ड पोर्ट तो पूरी तरह से बिल्कुल ज़मीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके साथ समुंदर लगता ही नहीं है। अच्छा, ये जो इनलैंड सी पोर्ट है ना, ये भी है तो ज़मीन के अंदर ही, पर ना ये इसको कनेक्ट करने के लिए, कलकत्ता को कनेक्ट करने के लिए हमें खुद अपनी तरफ से कोई आर्टिफिशियल कैनाल नहीं बनानी पड़ी। ये हुबली नदी के किनारे है, हुबली नदी, आपने सभी ने हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा, ठीक है, टीवी पर देखा भी होगा, हो सकता है रियल लाइफ में आप देखा भी हो आपने, ठीक है। तो हावड़ा ब्रिज किसके ऊपर बना है, हुबली रिवर के ऊपर बना है। अब जो हुबली रिवर है ना, वो समुद्र में जाके गिरती है, क्योंकि आपको पता है ये हर नदी जो है, एवरी रिवर फॉल्स इनटू द ओशन, हर नदी समुद्र में जाके गिरती है। तो जो हुबली रिवर है वो यहाँ से आती हुई ऐसे समुद्र में जाके गिरती है। तो वो हुबली रिवर ना कलकत्ता शहर को समुद्र से जोड़ती है, और इसीलिए हमको अलग से कलकत्ता में कोई आर्टिफिशियल कैनाल नहीं बनानी पड़ी जैसे हमने विशाखापट्टनम में बने। तो दैट इज वाई कोलकाता इज नॉट ए लैंडलॉक्ड पोर्ट, कोलकाता इज एन इनलैंड सी पोर्ट। एंड इनलैंड सी पोर्ट और लैंडलॉक्ड पोर्ट में फर्क क्या है कि ये पूरी तरह से ज़मीन से घिरा होता है, कोई नदी नहीं गुजर रही, कोई समुद्र नहीं गुजर रहा, खुद अपनी तरफ से कैनाल बनानी पड़ी। लेकिन ये इनलैंड सी पोर्ट ऐसा सी पोर्ट है जो कि ना ज़मीन के अंदर को बना हुआ है, पर वो नदी के द्वारा कनेक्टेड है, उसके लिए हमें अलग से कोई कैनाल नहीं बनानी पड़ी। ये नदी के द्वारा, हुबली रिवर के द्वारा, रिवर हुबली के द्वारा इजीली बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड। तो दैट्स वाई देयर वाज नॉट एनी टाइप ऑफ नीड टू कनेक्ट इट विद द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हुबली रिवर सीधे समंदर में आके गिरती है। तो दैट इज़ वाई जो आपका ये है कोलकाता, इट इज़ कॉल्ड एन इनलैंड सी पोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर हुबली रिवर के ऊपर जो आपका हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, उसको किसी टाइम पे क्या करते थे, जब तक वो नया बना था ना, तब उसको ना जब भी किसी शिप ने गुजरना होता था तो दोनों तरफ से ट्रैफिक रोककर पहले उसको खोल दिया जाता था सेंटर में से। जैसे ऐसे इस तरह से बना हुआ हो तो उसको सेंटर में से ना ऐसे ऊपर उठा दिया जाता था, दोनों तरफ से ट्रैफिक रोककर ऐसे पहले सेंटर में से खोल दिया जाता था, फिर शिप गुजर जाता था, तो फिर उसके बाद दोबारा से उसको सीधा करके ट्रैफिक स्टार्ट किया जाता था। तो ठीक है, तो वो ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि वो नदी के ऊपर बना है, और कलकत्ता क्या है, कलकत्ता इज एन इनलैंड सी पोर्ट। कलकत्ता सीधे समुद्र के किनारे नहीं है, वो इनलैंड है। तो लेकिन वो नदी के ऊपर से गुजरा, तो पहले जहाज गुजर जाता था नदी के ऊपर से, उसके बाद फिर उसको हावड़ा ब्रिज को दोबारा चला दिया जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका थोड़ा कुछ सालों बाद उसका ना उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी गई, हावड़ा ब्रिज की थोड़ी हाइट ऊंची कर दी गई। तो तब से क्या होता है कि जहाज आराम से ऐसे निकल जाते हैं और हावड़ा ब्रिज को खोलना नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेकिन कलकत्ता इज स्टिल ए इनलैंड सी पोर्ट, बट इट इज connected to the Bay of Bengal with the help of river Hubli, and that is why it is called an inland seaport। इस हुबली नदी की वजह से कलकत्ता जैसा शहर भी एक सी पोर्ट बन चुका है, क्योंकि नदी सीधा समुद्र में जाके गिरती है। क्लियर, ये फ़र्क है विशाखापट्टनम जैसे लैंडलॉक पोर्ट में और कलकत्ता जैसे इनलैंड सी पोर्ट में। यहाँ पर क्या है, लैंडलॉक पूरी तरह ज़मीन के अंदर ही था, हमने खुद ना कोई नदी, यहाँ से कोई नदी भी नहीं गुजर रही थी, हमने खुद अपनी मर्जी से यहाँ से कैनाल बनाकर इसको जोड़ा। तो दैट इज़ वाई ये लैंडलॉक सी पोर्ट भी क्या बन गया, एक सी पोर्ट बन गया। लेकिन ये ऑलरेडी इनलैंड तो था, पर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रिवर हुगली, ठीक है। तो रिवर हुगली की वजह से इट वाज एन इनलैंड सी पोर्ट। क्लियर। उसके बाद है हल्दिया पोर्ट वॉज ऑल्सो डेवलप। अच्छा, उसके बाद ना हमने यहाँ पर कलकत्ता शहर में, क्योंकि कोलकाता काफ़ी बड़ा पोर्ट है, यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, और खासकर पार्टीशन के बाद, जब पार्टीशन हुआ, इधर से पाकिस्तान अलग हो गया, उधर से बांग्लादेश वाली साइड ईस्ट पाकिस्तान भी अलग हो गई थी, दो टुकड़े हुए थे यहाँ से। तो यहाँ से चिटगांव पोर्ट था बड़ा अच्छा, वो भी हमसे अलग हो गया। इधर से कराची अलग हो गया था, उधर से चिटगांव अलग हो गया था। तो कराची की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब कि कराची की कमी को दूर करने के लिए हमने कांडला पोर्ट बनाया था, ठीक है। आपने देखा होगा कल के वीडियो में, यहाँ पे कांडला पोर्ट हमने बनाया था फॉर द लॉस ऑफ कराची। इसी तरह से जब कलकत्ता पोर्ट तो था पहले, लेकिन बांग्लादेश वाली साइड में एक बड़ा अच्छा पोर्ट था हमारे पास जिसका नाम था चिटगांव सी पोर्ट। लेकिन बांग्लादेश अलग बनने से, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के बनने से, वो भी हमसे अलग हो गया था। तो इसीलिए हमारे को कलकत्ता पे ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए इसके ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए कलकत्ता के साइड में हमने एक और पोर्ट बनाया, उसका नाम हमने क्या रखा, हल्दिया सी पोर्ट, ठीक है। उसका नाम हमने रखा हल्दिया सी पोर्ट, आप लोग बुक में टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हल्दिया सी पोर्ट भी क्या है, टू रिड्यूस द ट्रैफिक, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोलकाता सी पोर्ट। तो दैट्स वाई एक और इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है कलकत्ता के साथ ही, दैट इज आवर हल्दिया सी पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है
ठीक है बेटा, तो दिस वॉज योर टुडेज वीडियो अबाउट योर वाटरवेज, ठीक है, अबाउट योर वाटरवेज, अबाउट योर सी पोर्ट्स। तो इस तरह से हमारा वाटरवेज का जो टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है बेटा दैट इज़ योर एयरवेज। थोड़ी स्टार्टिंग इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एयरवेज की। अगर इसमें वाटरवेज में कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वाटरवेज भी और सी पोर्ट्स भी। स्टिल हैव एनी डाउट्स ना तो आप लोग कमेंट्स में सेंड कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज योर एयरवेज। अब एयरवेज में क्या है बेटा, द एयर ट्रैवल, आपको पता है एयरवेज की खासियत क्या है, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आपको पता है एयरवेज इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलता है और ऑल्सो द मोस्ट कंफर्टेबल एंड कॉस्टलियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये आपको पता ही सभी को, कोई नई बात तो है नहीं, सारा आपको पता होगा। नंबर 3, इट कैन कवर वेरी इजी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डेजर्ट, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो मेरे, राइट ऑन द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवेज, explain the importance of airways, write any 5 points, explain the importance of airways, write any 5 points, ठीक है। नंबर 3 इसमें लिख सकते हैं, it can easily cover the high mountains, dense forests, oceans एंड रिवर्स, ठीक है। जिसकी वजह से एंड ऑल जिसकी वजह से इट कैन कनेक्ट द फार फ्लंज एरियाज ऑल्सो ऑफ द कंट्री, देयरफॉर इट कैन कनेक्ट द फार फ्लंज एरियाज, इट कैन कनेक्ट the far-flung areas of the country, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, use for dropping off material to the inaccessible areas in Ladakh and Arunachal Pradesh, इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा ऑल्सो provides faster movement or transportation to the distant places, ठीक है। अगर आपने बहुत दूर दराज के एरिया में जाना हो, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, the fastest movement of our transportation is done by the
बाय द एयरवेज, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा, बुक में अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो पिक्चर, ये जो फिगर आपकी बनी है हेलीकॉप्टर जिसमें बना है, इस फिगर के नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई इज एयर ट्रैवल प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये टिक कर लो क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ज़्यादातर एयर ट्रैवल को प्रेफर क्यों किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के ना कई एरियाज है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो एरियाज क्या है अपने आप में इनएक्सेसिबल एरियाज, ठीक है, इनएक्सेसिबल एरिया जहाँ कोई सड़क नहीं पहुँचती, कोई रेलवे नहीं पहुँचती। तो कई जगह पर क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा ना ड्रॉपिंग ऑफ मटीरियल ये चीज़ की जाती है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे ना अरुणाचल प्रदेश के बहुत दूर दराज के एरियाज़ है, वहाँ पर ना सड़क है ना रेलवे है, पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर खाने का सामान भेजने के लिए, ठीक है, दवाइयाँ और कुछ भी राशन और गर्म कपड़े या कुछ भी जो भेजना होता है ना, चाहे वो लोगों के लिए भेजना हो चाहे ट्रूप्स के लिए भेजना हो, तो वो सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन एरियाज़ में ड्रॉप किया जाता है, हवा से नीचे ड्रॉप किया जाता है और फिर वहाँ पे वो इकट्ठा करके उसको स्टोर करके जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बिकॉज पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसकी वजह से इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे फार फ्लंज एरियाज़ में, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो फार फ्लंज एरिया है जहाँ पहुँचना नामुमकिन जैसा है काफ़ी हद तक, वहाँ पर भी जो एक्सेस है वो हम लोग एयरवेज के ज़रिए यानी कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए कर सकते हैं और हम करते भी। दैट इज़ वाई एयरवेज में हेलीकॉप्टर्स जो है अपने आप एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है that provides us the accessibility to the inaccessible areas, ठीक है, like in Arunachal Pradesh। और that is the reason that in most of the far flung areas of northeast एयर ट्रैवल इज़ मोस्टली प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू द रोडवेज और रेलवेज तो है ही नहीं वहाँ पे। रोडवेज पहुँचने में भी बहुत टाइम लगता है, बिकॉज कई बार रोड एवलांचेस की वजह से टूट जाते हैं, कभी हैवी स्नोफॉल की वजह से कट जाते हैं, तो पूरा साल 6 महीने वो एरिया कटा ही रहता है। तो दैट्स वाई हम लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या प्रेफर करते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस, ठीक है, यानी कि एयरवेज दैट प्रोवाइड्स एक्सेसिबिलिटी टू दिस इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? So that is the reason that air travel is mostly preferred in the northeastern states like Arunachal Pradesh. Clear? उसके बाद है अब एयरवेज में क्या क्या आता है आपको पता ही है। एयरवेज में 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एयरवेज की, ठीक है, तो इट हैज़ टू मेजर सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज योर प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, एंड हेलीकॉप्टर्स। इसमें ये 2 चीज़ें हमारे पास आती हैं। प्लेन्स हमारे पास आते हैं अगर हमने बहुत जल्दी कोई ज़्यादा सामान भेजना हो, बहुत जल्दी पहुंचना हो। हेलीकॉप्टर्स हमें तब यूज़ करने होते हैं जो ऐसे एरियाज़ में सामान पहुंचाना हो जहां प्लेन भी ना उतर सकता हो, जहां पे कोई हवाई अड्डा भी ना हो। तो ऐसे एरियाज़ में सामान को उतारने के लिए, सामान को ड्रॉप करने के लिए आमतौर पर हम लोग हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फार फ्लंज एरियाज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑल्सो इन द स्टेट्स ऑफ लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड ऑल दीज एरियाज़। वहाँ पर हम लोग आमतौर पर हेलीकॉप्टर्स प्रेफर करते हैं ताकि सामान को उतारा जा सके। क्लियर? बिकॉज वहाँ पर एयरपोर्ट्स भी नहीं है। क्लियर? उसके अलावा अगर हम लोग एयरवेज की बात करें तो हमारी सबसे पहले जो प्लेन्स हैं, इसमें हमारे पास कई तरह की कंपनीज होती हैं। इसमें एक गवर्नमेंट कंपनी हमारे पास एयर इंडिया, ठीक है, और बहुत सारी हमारे पास प्राइवेट कंपनीज भी। एयर इंडिया इज़ ए गवर्नमेंट कंपनी एंड बहुत सारी रेस्ट अदर्स आर प्राइवेट कंपनी। दिस इज़ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है, दीज आर प्राइवेट कंपनीज। तो बहुत सारी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है एयर इंडिया, बाकी सारी क्या आपकी प्राइवेट कंपनी, जिसमें जेट एयरवेज, ठीक है, और किंगफिशर तो चलो डूबी गई है, गो एयर, ठीक है, आपकी इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट, ये सारी की आपकी प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो ये हमारे पास एयरवेज में हमें इंडिया के अंदर भी चलती हैं, इंडिया के बाहर भी चलती हैं, ठीक है। और हेलीकॉप्टर्स में आमतौर पे हमारे पास गवर्नमेंट की कंपनी दैट इज पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस। अब ये भी क्या अपने आप में, ये दिस इज अगेन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी कंपनी है। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस, ये हमारे लोगों को दूर दराज के एरियाज़ में एयरवेज की फैसिलिटी उपलब्ध करवाती है, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस लिमिटेड। और उसमें एयरवेज में दूसरी क्या है, एयर इंडिया, ठीक है, और साथ में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज। तो बेटा कुल मिला के बात ये है कि एयरवेज इज़ दैट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ द फास्टेस्ट
which is the fastest means of transportation, and also a such type of transportation that provides us access to those areas that neither have roadways nor railways and nor even the airports. So such type of inaccessible regions can only be reached through airways, that is through helicopters, and the goods are dropped there for giving it to the people. तो ठीक है, तो ऐसे एरियाज का एक ही सहारा है, दैट इज़ योर हेलीकॉप्टर्स. तो अगर सोचो ये भी ना होता, एयरवेज भी ना होता, तो कैसे सामान वहाँ पहुँचाया जाता. दैट इज़ द रीज़न दैट एयरवेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर आपने किसी दूर दराज के एरिया में जाना, आपने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है और आपने जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो आपको एयरवेज यूज़ करना पड़ेगा. वरना आप शिप्स के थ्रू भी जा सकते हो, जा तो ठीक है ना, आप जा तो वाटरवेज के जरिए भी सकते हो, पर उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा. अब आपने सपोज मुंबई से अमेरिका जाना है, मुंबई के रास्ते अमेरिका जाना है थ्रू वाटरवेज, तो आपको कम से कम 2 महीने लग जाएंगे पहुंचने में थ्रू वाटरवेज, क्योंकि पानी का जहाज़ तो बहुत स्लोली चलता है, ठीक है, तो वो तो 2 महीने लगा देगा पहुंचने में. लेकिन अगर आप लोग प्लेन से जाओगे तो 7-8 घंटे में पहुंच जाओगे. तो दैट इज इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. And so that means of transportation that provides us accessibility to the far-flung inaccessible areas like Arunachal Pradesh and Ladakh and Lahaul Spiti in Himachal Pradesh. That is the major reason that airways is also a very very important means of transportation. And also this is the reason that airways is mostly preferred in the northeastern regions of India, because these are totally inaccessible. So that's why उधर हम लोग आमतौर पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए एयरवेज के थ्रू सामान को ड्रॉप करते हैं. ठीक है बेटा, तो दिस वाज अवर टुडेज़ वीडियो. ठीक है, आगे भी हम लोग एयरवेज को कंटिन्यू करेंगे, बट दिस वाज अवर टुडेज़ वीडियो फॉर waterways, that is your seaports, and also about the airways. ठीक है, in the next video we shall continue with the airways and also with the means of communication. So and also we shall cover the map also. ठीक है बेटा, so this was our today's video. Thank you so much for watching the video. Still have any doubts, you can send your doubts in the comment section. I will answer your doubts. ठीक है जी, तो thank you so much and God bless you all. Thank you.